सॉरी सर। सर आपकी जानकारी के लिए बताते चलिए एक उदाहरण पार्सल नहीं है। इस पार्सल के अंदर सम इलीगल स्टफ पाया गया है जो कि दिल्ली एयरपोर्ट में कस्टम ने सीज कर दिया है। नमस्कार बंधुসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এটা কল ৰেকৰ্ডিং শুনাম, যিটোত আপোনালোকে শুনা পাব যে কেনেকৈ মোক ফ্ৰড কৰিব ওলাইছিলে। কিন্তু আমিতো গম পাই যাওঁ ন যে এইটো ফ্ৰড কলে হয় নে কি হয়। কিন্তু বহু মানুহ এনেকুৱা আছে এতিয়াও যে এনেকুৱা এই ফ্ৰড বিলাকৰ জালত পৰি যায়। আজিৰ পৰা ধৰক ৩-৪ বছৰমান আগলৈকে কিছুমান ফ্ৰড আছিলে, যেনেকৈ আপোনাক ফোন কৰি ক'ব যে আপোনাৰ ঘৰত মোবাইলৰ টাৱাৰ বহাব লাগে, তাৰ কাৰণে মানে এটা প্ৰচিডিউৰ আছে, আপুনি এডভান্স পইচা জমা দিয়ক। আৰু সেইটো চক্ৰত পৰি কিনে মোবাইলৰ টাৱাৰ বহোৱাৰ চক্ৰত বহুতে পইচা জমা দি একদম পুৰা লুটন খাইছিলে। তাৰপিছত নেক্সট আহিল যে আপুনি লটাৰীত এটা এমাউণ্ট জিকিছে, ইতিমধ্যে চেকটো ৰেডি হৈ আছে, চেকটো আপোনাক দিয়াৰ কাৰণে বা আপোনাৰ তাত ডিছপেচ কৰাৰ কাৰণে এটা টোকেন এমাউণ্ট জমা দিব লাগে আমাৰ একাউণ্টত। তাৰপিছত আপোনাক চেকখন দিম বুলি এনেকৈ ফোন কৰে। আৰু সেই চক্কৰতো বহুতে 20,000, 30,000, 50,000, 1 লাখ টকালৈকেও মানে সেই একাউণ্টত জমা দি দিছে। কাৰণ চেকৰ এমাউণ্টটো সেইফালৰ পৰা কৈ দিয়ে কি আপুনি 1 crore জিকিছে, আপুনি 80 লাখ টকা জিকিছে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল। কিন্তু এইবিলাক কথা লাহে লাহে যেতিয়া মানুহবিলাকে গম পালে, তাৰপিছত এতিয়া নতুন ধৰণৰ কিছুমান টেকনিক মানে সেই ফ্ৰডবিলাকে উলিয়াই লৈছে। যেনেকৈ আজিকালি কি হয়, আজিকালি ধৰক ফোন কৰে কি বুলি যে আপোনাৰ ঘৰত এটা পাৰ্চেল আহিছিল, পাৰ্চেলটো ঘূৰি গৈছে, সেনেকৈ আপোনাৰ তাত ফোন আহিব। আপুনি তাৰপিছত তেওঁ সুধিব যে কি পাৰ্চেল আছিল কি নাই। তেওঁলোকে তাৰপিছত ক'ব যে আমাৰ ৰেকৰ্ড অনুসৰি এই পাৰ্চেলটোত বহুত মূল্যৱান বস্তু আছে, কিন্তু আপোনাৰ এড্ৰেছটো কনফাৰ্ম নোহোৱাৰ কাৰণে বস্তুটো ঘূৰি গৈ আছে। তাৰপিছত আপোনাৰো ইচ্ছা যাব যে কিবা মূল্যৱান বস্তু আছিল। তাৰপিছত তেওঁলোকে ক'ব যে আপোনাৰ এড্ৰেছত এই পাৰ্চেলটো পঠাই দিম, পাৰ্চেলটোত ইমান কেজি গ'ল্ড আছে, ইমান কেজি কিবা আছে, তো আপোনাৰ এড্ৰেছটো কাৰেক্ট কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে আপোনাৰ পৰা এটা ফিজ লাগিব, ফিজটো আমাক জমা দিয়ক। চ' লগতে বহুত মানুহে ফিজ জমা দি দিব সেই একাউণ্টত। তাৰপিছত না পাৰ্চেল না ফোন নম্বৰ, চব কাট। তো এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰড। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ নতুন ফ্ৰড কিছুমান আছে, যেনে ধৰক প্ৰথমতে আপোনাৰ লগত ফেচবুকত মেছেঞ্জাৰত চিনাকি হ'ব, ছোৱালীৰ ফটো লগোৱা থাকিব, সেই ছোৱালী আপোনাক মেছেজ কৰিব কি মোৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হ'ব বিচাৰে নেকি। তাৰপিছত বহুত ল'ৰা আছে বা বহুত মানুহ আছে যে ছোৱালীৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হ'ব বিচাৰি থাকে। তাৰপিছত মানে ফেচবুক মেছেঞ্জাৰত গৈ কিনে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হ'ব। তাৰপিছত ভিডিঅ' কল কৰিব ক'ব তেওঁলোকে। ভিডিঅ' কল কৰিতো একদম পূৰা মজা লোৱাৰ কাৰণে চব ৰেডি থাকে। সেইফালৰ পৰা একদম পূৰা নিউড হৈ কিনে ভিডিঅ' কৰিব, মানে যিটো ভিডিঅ' ছোৱালীতে নকৰে কিন্তু সেইটো অলৰেডি ৰেকৰ্ডেড থাকে। আৰু এইফালে সেই মানুহজন বা ল'ৰাজনক নিউড হৈ কিনে ভিডিঅ' পঠাব দিব। যেতিয়া ভিডিঅ' পঠাই দিলে তাৰপিছত ফচি গ'ল মামলা। তাৰপিছত ক'ব যে আপোনাৰ ভিডিঅ' মই একদম পূৰা এতিয়া প্ৰচাৰ কৰি দিম, এতিয়া মই অনলাইনত এৰি দিম, যদি এৰিব নালাগে আপুনি পইচা দিয়ক। সেই মানুহজনে ভয় খাই যাব আৰু তাৰপিছত সেই ফ্ৰডজনে যিমান পইচা ডিমাণ্ড কৰিব সিমান পইচা দি যাব। চ' এনেকৈ বহুত মানুহ ফচিছে, আপোনালোকে নিশ্চয় নিউজবিলাকত শুনা পাই আছে। আৰু আজি আপোনালোকক মই যিটো ফোন ৰেকৰ্ডিং শুনাবলৈ গৈ আছোঁ সেইটোতো মানে আৰু এটা বেলেগ লেভেলৰ। মোক ফোন কৰিলে এই এনেকুৱা কুৰিয়াৰ ৰিলেটেডে হয়, মানে সেইদিনা মোক ফোন কৰিলে, ফোন কৰি কিনে কৈছে যে আপোনাৰ এটা পাৰ্চেল কাষ্টম ডিপাৰ্টমেণ্টত হোল্ড কৰা আছে, য'ত মানে আনইথিকেল কিছুমান বস্তু আছে সেই পাৰ্চেলটোত, আৰু সেই পাৰ্চেলটো আপোনাৰ নামত আছে। চ' এতিয়া কাষ্টমে আপোনাৰ নামত কেছ ফাইল কৰিব আৰু আপুনি বৰ বেয়াকৈ ফচিব। গতিকে তাৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে আপুনি কিছুমান ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। তো এনেকৈ মানে মোৰ তাত ফোন আহিছিলে। আৰু তাৰপিছত মই তেওঁলোকক যেতিয়া ভালকৈ ধৰিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে ফোনটো কাটি দিলে। গতিকে ফোন কলটো শুনি লওঁ। गुड मॉर्निंग, वेलकम DHL कस्टमर केयर सर्विसेज, हाउ आई कैन हेल्प यू? यस, अभी फोन किया था मुझे आप लोगों से, बोला है कि कुछ मेरा पार्सल जो है वो रिटर्न होके गया है। तो जी सर, मुझे तो कोई आइडिया नहीं क्या पार्सल था क्या है, बताइए सर। आपके पास कोई पार्सल का नंबर या ट्रैकिंग आईडी है? मैं डिटेल चेक कर लूँ आपके सिस्टम पे। ऐसा तो नहीं है, जस्ट बोला अभी आया है मैसेज कि आपका पार्सल जो है रिटर्न हो गया है। जी जी सर। सर अपना नेम बताएं, मैं अभी सिस्टम में चेक कर लेता हूँ किस कारण से हुआ कल आपको। NAYAN। जी सर, लाइन पे बने रहिए, मैं अभी सिस्टम में चेक कर लेता हूँ सर। सर लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अपना नंबर कंफर्म करें। 98641 ये आपका नंबर है?
यस यस। जी सर, हमारे सिस्टम में एक मैसेज हो रहा है, नोटिस कीजिएगा। आपने एक पार्सल भेजा था 21 अक्टूबर को, जो कि दिल्ली से थाईलैंड जा रहा था, सेंड सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसी कारण ये कॉल आपको रिसीव हुआ है। तो आपको इस बारे में कुछ जानकारी है? समझा नहीं, क्या क्या पार्सल है? सर, आपके पार्सल के अंदर से हम कुछ इलीगल स्टफ दिखाया जा रहा है। आपका नाम, आपका नंबर और आधार की सॉफ्ट कॉपी वेरीफाइड हमारी दिल्ली ब्रांच है, इसी कारण ये कॉल आपको रिसीव हुआ है। क्या कुछ बारे में कुछ जानकारी है? इसके बारे में तो मेरे पास तो जानकारी नहीं है सर, अगर आपने ये पार्सल में भेजा है तो हो सकता है कोई व्यक्ति आपकी, कोई क्रिमिनल आपकी आइडेंटिटी का मिसयूज करके ये पार्सल भेज रहा हो। सर, आपकी जानकारी के लिए बताते चलिए, कोई साधारण पार्सल नहीं है। इस पार्सल के अंदर सम इलीगल स्टफ पाया गया है, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट पे कस्टम ने सीज कर दिया है। तो कंफर्मेशन के लिए आपको कॉल की गई है कि सर आपने ये पार्सल भेजा या किसी व्यक्ति ने? मैं तो भेजा नहीं है, ये पार्सल मेरे नाम पे कैसे दे दिया? जी सर, फिगर आउट करने के लिए सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकता हूँ? बोलिए। सर, आपने कभी अपना आधार कार्ड खोया है, पैन कार्ड खोया हो? खोया तो नहीं, मेरे पास ही है। जी सर, राइट सर। आपने सबमिट कॉपी करवाई हो नहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, होटल बुकिंग पे, शॉपिंग पे या स्पेशली पब्लिक प्लेस पे? होटल बुकिंग वगैरह में तो देते रहते हैं हम लोग। जी सर, हमारे आधार कार्ड पे एक QR कोड होता है, जब कोई व्यक्ति से स्कैन करता है तो हमारी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति के पास चली जाती है, जैसा कि हमारे बैंक अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन, हमारी फैमिली की इन्फॉर्मेशन और हमारे सर सिग्नेचर तक। अगर आपने ये पार्सल नहीं भेजा तो आप एक लीगल एक्शन में अपने आधार ID के मिसयूज की कंप्लेन एक दिल्ली साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में दर्ज करवाइए, क्योंकि अगर आप अभी कोई लीगल एक्शन नहीं लेते हैं तो इस तरह के क्रिमिनल्स जिसके पास आपकी आइडेंटिटी है वो बार बार आपकी आइडेंटिटी का मिसयूज कर सकता है, जिसके कारण आपको फ्यूचर में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं सर, डायरेक्टली दिल्ली साइबर क्राइम डिपार्टमेंट जा सकते हैं तो वेल एंड गुड। सेकंड में आपकी सहायता के लिए हमारी DHL कंपनी ये कर सकती है, आपकी ये कॉल ट्रांसफर कर देगी दिल्ली साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में। आप वहाँ अपनी ऑनलाइन रिपोर्ट आइडेंटिटी मिसयूज की करवा सकते हैं। आपके लिए क्या बेटर रहेगा सर? उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए। सर, आपके पास एक पेन और पेपर है, मैं आपको पार्सल के बारे में डिटेल प्रोवाइड कर दूँ ताकि आपके लिए इजीली कंप्लेन लॉन्च करवाने में सर। बोलिए। आप एक पेन और पेपर ले लीजिए। ठीक है, बोलिए। सर, मेरा नेम जी सर, मेरा नेम लिखिए अविराज शुक्ला और मेरी एम्प्लॉय ID लिखिए 51773। जी सर। और सर, रिसीवर का नेम लिखिए जिस रिसीवर को सेंड किया जा रहा था पार्सल, SIOUEY। यस सर, COA। और सर, रिसीवर का मोबाइल नंबर लिखिए 66637 9087। लिखिए सर, KHAO SAN सैन रोड बैंकॉक थाईलैंड, खाओ सैन रोड बैंकॉक थाईलैंड। लिखिए सर। यस। जी सर, पार्सल का नंबर लिखिए 3380 468580। जी सर, पार्सल कंटेन लिखिए, जो पार्सल के अंदर आइटम थी 5 पासपोर्ट। 5 पासपोर्ट। जी सर, 5 पासपोर्ट, 3 क्रेडिट कार्ड, 3.1 kg ऑफ क्लॉथ, 150 ग्राम MDMA एंड एक iPad है सर। तो सर, आप SBI बैंक यूज करते हैं? तो उसमें क्या इलीगल आइटम क्या है? ठीक ही तो है, पासपोर्ट है, क्रेडिट कार्ड है, प्लॉट है सर। 150 ग्राम MDMA है सर, ये हमारे देश में बैन है 1996 से, ये इलीगल मेडिसिन है सर। 150 ग्राम कितने क्या है? MDMA। MDMA क्या उस चीज है सर? ये ड्रग होता है सर, हमारे देश में बैन 1996 से। जो व्यक्ति आपके आइडेंटिटी का मिसयूज करके इस तरह के इलीगल पार्सल भेज सकते हैं, आने वाले समय में वो इलीगल क्राइम कर सकता है सर। जी सर, आप SBI बैंक यूज करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी सर, ये पेमेंट ट्रांसफर की गई है SBI क्रेडिट कार्ड के द्वारा, जिसके लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5150। और सर, पार्सल की अमाउंट पे की गई है 13,250 रुपीज। जी सर। सर, आपके सेफ्टी पर्पज के लिए कॉल रिकॉर्ड हो रही है, आप रिश्योर करते हैं कि DHL के द्वारा आपने ये पार्सल नहीं भेजा? मैं तो भेजा नहीं है ये पार्सल। जी सर, थैंक यू। जी सर, थैंक यू कंफर्मेशन। मैं आपकी कॉल ट्रांसफर करने लगा हूँ दिल्ली साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में। जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं उन्हें एक्सप्लेन कीजिए, कोई व्यक्ति मेरी आइडेंटिटी का मिसयूज करके इलीगल पार्सल भेज रहा है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी हो ना, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं अपने आइडेंटिटी के मिसयूज की कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहता हूँ। तो काइंडली इन्वेस्टिगेट दिस क्लियरली। ठीक है सर। नेट में मैं अभी सर्च कर रहा था, DHL में तो ये नंबर का कोई पार्सल ही नहीं है एंट्री। जी सर, आपका जो पार्सल है सेंड सक्सेसफुल नहीं हो पाया सर। अगर सेंड सक्सेसफुल होता तो रिसीवर भी चेक कर सकता और सेंडर भी नहीं होगा भाई। ये मैं अगर किसी DTDC कुरियर में मैं अगर लगाता हूँ कुछ पार्सल, तो उसमें डेटा देने के बाद मुझे जो नंबर देता है वो तो उसमें एंट्री हो जाता है उसका डिटेल्स। जी तो जी। ये तो सर, मुझे ये बताइए, जब आप पार्सल भेजते हैं सर, तो वो आपको पार्सल का नंबर देते हैं, वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो पार्सल आपका सेंड सक्सेसफुल डिलीवर हो जाता है। डिलीवर नहीं होता है माय डियर। आप
पार्सल भेजा ही नहीं है कभी भी। आप जब पहले भेजते हो पार्सल, भेजने के टाइम पे आप जब पेमेंट करते हो उसी टाइम पे वो जिस माध्यम से, जिस कंपनी से आप पार्सल भेजते हो, वो लोग डाटा एंट्री करता है लैपटॉप में। उसके बाद आपका पार्सल के ऊपर एक स्टैम्प वो लोग लगाता है, वो पार्सल का वो नंबर के साथ, जो आपका ये जीएन नंबर होता है, उसके बाद ही जाता है। और जब पेमेंट करता हूँ तभी जाके वो वहाँ पर ट्रैकिंग कर सकते हैं कि पार्सल अभी गुवाहाटी से निकला है, असम से निकला है, या दिल्ली से निकला है, मुंबई से निकला है, कहाँ पर है, क्या है, वो चलते रहते हैं। बाद में जाके वो कस्टम पे जाते हैं, जब मतलब वो विदेश जाने हैं तो उस टाइम पे कस्टम पे चेक होता है। पहले आप लोगों को कैसे पता चल रहा है ये इसके अंदर ये है? जी सर, मैं आपको बताता हूँ। ये जो नॉर्मल पार्सल होते हैं जो हमारे देश के अंदर सिटीज में जाते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल पार्सल होते हैं। ये मतलब कि हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, जो हमारे व्यक्ति होते हैं, या हमारे जो कस्टमर होते हैं, ये चेक करवा के और अपना डाटा निकलवा के जाते हैं। ये जो पार्सल होता है, ये इंटरनेशनल जो पार्सल होता है, ये एयरपोर्ट पे कस्टम वाले चेक करते हैं, कस्टम ऑफिसर, ठीक है। कब चेक करता है आइडिया? ये जब मैंने तो पार्सल दे दिया हूँ उसके बाद उस टाइम पे चेक नहीं करता है। ये जब आपका स्टेप बाय स्टेप जाते रहते हैं, जब वो वहाँ पर पहुँचता है तब जाके वो चेक करता है। लेकिन यहाँ पर तो वो कोई मेंशन ही नहीं है कि इस डेट में ये लगाया, ये पार्सल इसके नाम पे है, कुछ तो नेट में तो कुछ दिखाता ही नहीं। इनवैलिड ये सीएन नंबर ट्रैकिंग आईडी दिखा रहा है। जी सर, लोगों को फंसा रहे हो, लोगों को फंसा रहे हो, उल्लू बना रहे हो लोगों को। अभी तुम कहीं তো চাওক, ফোন কলটো শুনি গম পালেনে আপোনালোকে যে তেওঁলোকে কি ধৰণে ফচাব ওলাইছিল। ধৰক কোনোবা যদি নজনা মানুহ থাকে, মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল পাৰ্চেলৰ বিষয়ে যদি নজনা মানুহ থাকে, সেই মানুহেতো ভয় খাই যাব যে মোৰ নামত এনেকুৱা আনইথিকেল বস্তু পঠাই দিছে কোনোবাই। এতিয়া যদি কাষ্টমাৰে ধৰি মোৰ এগেইনষ্টত যদি কেছ ফাইল কৰি দিয়ে, মোক যদি জেলত লৈ যায়, মোৰ কি হ'ব? আৰু সেই ভয়তে বহুত মানুহে পইচা দিবলৈ বাধ্য হৈ যায়। তেওঁলোকে সেইফালৰ পৰা ক'ব যে আপোনাক যদি জেলত পঠাব নালাগে বা আপোনাৰ ওপৰত যদি কোনো ধৰণৰ একশ্যন ল'ব নালাগে, তেতিয়াহ'লে একাউণ্ট নাম্বাৰ এটা দি আছোঁ, এই একাউণ্ট নাম্বাৰত পইচা পঠাই দিয়ক। আৰু তেনেকৈ বহুতে পইচা পঠাই দিয়ে। কিন্তু এতিয়া যেতিয়া মই তেওঁলোকক ভালকৈ ধৰিলোঁ যে যিটো কুৰিয়াৰ নাম্বাৰ আপোনালোকে কৈছে, DHL বোলা কোম্পানীটোৰ, মানে DHL কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচৰ সেই নাম্বাৰটো তেওঁলোকে কৈছিলে, সেই নাম্বাৰটো মই এনেই কৈ দিছোঁ যে নেটত এই নাম্বাৰটোচোন নাইচোন। কাৰণ আজিকালি কুৰিয়াৰবিলাক ট্ৰেকিং কৰিব পাৰি, যিয়ে কুৰিয়াৰ নহওক, DTDC কুৰিয়াৰ হওক, DHL কুৰিয়াৰ হওক, ফাষ্ট ফ্লাইট, যিকোনো কুৰিয়াৰ আজিকালি ইমানেই ডিজিটেল হৈ গৈছে যে আপুনি সেই ট্ৰেকিং নাম্বাৰটো মাৰি কিনে ট্ৰেক কৰিব পাৰে যে আপোনাৰ কুৰিয়াৰটো ক'ত আছে বা ক'ৰ পৰা ক'লৈকে পঠোৱা হৈছে। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ডিটেইলছ থাকে। তো যেতিয়া তেওঁলোকক এই বিষয়ে মই সুধিলোঁ যে আপোনালোকে যিটো কুৰিয়াৰ নাম্বাৰ মোক দিছে, সেই কুৰিয়াৰ নাম্বাৰটো নেটত নাইয়ে, মই এনেই ক'লোঁ মই নেটত চোৱাই নাই। তো তেতিয়া তেওঁলোকে ফচি গ'ল বস্তুটো। আৰু যেতিয়া মই ভালকৈ ধৰিলোঁ, আপোনালোকে ফোন কলটো শুনি নিশ্চয় গম পাইছে। চ' তাৰপিছত তেওঁলোকে যেতিয়া উত্তৰ মানে তেওঁলোকে দিব পৰা নাই, তেতিয়া ফোনটো কাটি দিছে। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা মই তেনেকুৱা লোকসকলক এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যিসকল লোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰডৰ জালত পৰে। চ' আপোনালোকে সদায় এনেকুৱা ধৰণৰ ফোন আহিলে প্ৰথমতে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব, আপুনি ভালকৈ কুৱেশ্যন কৰি ল'ব, আৰু কোনোবা জনা মানুহৰ লগত ডিছকাছ কৰি ল'ব পইচা দিয়াৰ আগতে, ঠিক আছে। আৰু যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ ফোন নাম্বাৰৰ পৰা আপোনাক সঘনাই ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকে, তেতিয়া সেই ফোন নাম্বাৰটোৰ এগেইনষ্টত ওচৰৰ পুলিচ থানাত গৈ কিনে কমপ্লেইন কৰি দিব। চ' সতৰ্ক থাকক, সাৱধান থাকক। চ' বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ওচৰত যিটো বেল আইকন আছে, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থৈ দিব। তেতিয়াহ'লে আগলৈ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ আপডেট আপোনালোকে পাই থাকিব। চ' আজিলৈ এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।